ہمیں یہ فیصلہ سنائے اور ہمیں یہ انصاف دلوائے. عام آدمی کا، عام پاکستانی کا اس وقت انصاف کا کیا امید ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی چیلنجز ہیں. اب اپنا انسٹیٹیوشنز کے دیکھیے، میرے میڈیا ساتھیوں، آپ بھی ایک اس ملک کے ایک اہم آفیشیل آئینی ادارہ نہ بھی ہو لیکن ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارا آزاد صحافت بھی ضروری ہے، رسپانسبل صحافت بھی ضروری ہے، اور اگر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں اپنے منتخب نمائندے سے کہ وہ اٹھ کے جلسے عام میں ہمارا میڈیا کو گالیاں دیں گے، خواتین کے خلاف اس طریقے سے بولیں گے اور قوم خاموش ہوگا، میڈیا یہ برداشت کرے گا کہ آپ تو سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ کے بارے میں کوئی بھی جو بھی کہ. ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سیاستدان سوچتے ہیں، عام آدمی سوچتا ہے کہ میڈیا کا بھی کوئی اس قسم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ ہر جھوٹ تو نہ چلے. اور اگر کوئی غلطی ہوا ہے، کوئی غلط خبر چھپا ہے، تو جب اس کی کلیریفیکیشن دیا جائے تو اس کلیریفیکیشن کو کم از کم اتنا ہی کوریج ملے جتنا وہ غلط خبر کو ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ سیکیورٹی حالات کو دیکھ لیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور جو پختونخوا کے حالات ہیں وہ اس سے بھی برے ہیں. بہت خطرناک کہانیاں آ رہے ہیں کہ شاید چیف منسٹر اپنا گاؤں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اس ایشو ان کا مقابلہ جس طریقے سے صوبائی حکومت کو اور بالکل وفاقی حکومت کو مل کے کرنا ہے، یہ پہلی دفعہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ جہاں پاکستان کا نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے، پاکستانی عوام کے لیے امن قائم کرنا کا جو ہم سب کا فرض ہے وہ خطرہ میں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم اس ایشو پہ بھی سیاست کھیلا جا رہا ہے اور اس قسم کا کنسنسس نہیں. تو جبکہ مایوس ہونے کی بہت ہی وجہ ہیں، جو کل سے پرسوں سے ایک آغاز ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے ایک امید نظر آ رہا ہے. جو پارلیمان کا یہ کمیٹی بنا ہے جس میں ہر سیاسی جماعت اس پارلیمان میں موجود ہے، حکومت ہو، حکومت کے اتحادی ہو، اپوزیشن ہو، ان سب کا نمائندگی ہے. اور اس جس ماحول میں یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے دباؤ سے، خوف سے، زور سے، زبردستی کچھ کرنا ہے. یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے کہ کم از کم ہم تو اپنا رویہ آپس میں، جب ہم آفس آتے ہیں، اور یہ نیشنل اسمبلی تو ممبران پارلیمان کے لیے ہمارا دفتر ہے، جب ہم آفس آتے ہیں تو وہاں ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے رکھے، پروفیشنلی کام کرے تاکہ عوام کا مسئلہ حل ہو. اگر ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ایک اچیومنٹ ہوگا. جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے ایشوز حل کرنے ہیں. واحد طریقے ہیں کہ ہمارے ادارے کام کرنا شروع کرتے ہیں. آج بھی اگر ہم اسی ڈاکیومنٹ کو آگے لے کے چلیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور میں ہم نے 90% اس پہ عمل درآمد کر دی. چند پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے عمل درآمد نہ کر سکے. ایک تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جو پاکستان کی تاریخ میں جتنے حادثے ہوئے ہیں، جن آمرانہ دور سے ہم گزرے ہیں، اور اگر ہم نے اپنا نظام کو ریکنسائل کرنا ہے اس ایشو کے حوالے سے، یہ
इस किस्म का इदारा कायम करना ज़रूरी होगा। दहशत गर्दी के हवाले से कोई भी नेशनल इशू को देखने के लिए, इंसाफ करवाने के लिए, और फिर ना सिर्फ इंसाफ मगर फिर एक रेकन्सिलिएशन करवाने के लिए इस किस्म के इदारा कायम करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारा नैब रिफॉर्म्स का जो मौक़िफ़ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो मेरा मंशूर में है, जो नुली का मंशूर में था, आजकल पीटीआई वालों का भी मंशूर में होगा, उस पे मैं सवाल करता हूँ ये कैसे है कि जब हम अपोजिशन में हैं नैब के लिए हमारा एक मौक़िफ़ होता है, जब हम हुकूमत में आते हैं नैब के लिए एक दूसरा मौक़िफ़ होता है। अगर हमने वाकई करप्शन का मुकाबला करना है और सियासी इंतकाम नहीं लेना है तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नैब रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स का निज़ाम फॉलो करना पड़ेगा। जुडिशरी पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी कंपोनेंट्स थे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने तजवीज़ दी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तजवीज़ दी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल मंशूर का हिस्सा है। हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। अगर किसी और का तजवीज़ है उस पर भी गौर करने के लिए तैयार है। मकसद क्या? मकसद कि हम चाहते हैं कि हम अपने अदालत को ताकतवर बना दें। हम चाहते हैं हम अपना अदालत को इतना ताकतवर बना दें कि जो बोझ उन पे इस वक्त है, इतने सारे केसेस, सब आप सब ये साइड करते हैं कि कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, ऐसे हम किस तरीके से उनको एम्पावर कर सकते हैं कि वो ये बोझ उठा सके और आम आदमी को हम फौरी जल्दी सस्ता इंसाफ दिलवा सकें। इसके साथ साथ बहुत से इश्यूज हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हम आपस में बात करेंगे। मैंने असेंबली में महंगाई का जिक्र किया कि महंगाई ऐसा इशू है जो हर सियासी जमात चाहता है कि महंगाई में कमी आई है, अवाम का मुतालबा है। तो अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में इजाफा होता है तो हम सब तनकीद करते हैं। जब महंगाई में कमी होता है तो फिर उसको हमें वेलकम करना चाहिए और साथ साथ हमारा सजेशंस देना चाहिए कि हम कैसे मज़ीद रिलीफ दिलवा सकते हैं अवाम को। तो मैं समझता हूँ कि जो कमेटी बना है ये एक बहुत ही अच्छा इब्तिदा है। अगर सारी सियासी जमातें इसमें नेक नियति से काम करें, बातचीत करके काम करें, तो हो सकता है कि हम इस इदारा को सही तरीके से चलाना शुरू करते हैं। दूसरे हमारे जो मसले हैं पाकिस्तान में उसको एड्रेस करने के मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव एक मुस्बत डेवलपमेंट है और उम्मीद है कि शायद जो इस वक्त पाकिस्तान में एक जो माहौल बना हुआ है जहाँ हमारा सियासत की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, नफ़रत की सियासत की वजह से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल उस तरीके से हल नहीं हो रहे हैं, अगर हम उसको एड्रेस कर सकें और अवाम के मसले हल कर सकते हैं तो वो मेरा भी जीत है और वो हमारे दूसरे साथी जो उस कमेटी में हैं उनका भी काम है। चेयरमैन साहब ये बताएं, पीपल्स पार्टी से दी गई हुकूमत भी कहती है, ये बताएं कि क्या अभी भी दोबारा राब्ते हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इसमें साथ नहीं देंगे हुकूमत का? अब मुझे नहीं पता जहाँ तक किस चीज़ का साथ देना है या नहीं देना है, और जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने अभी तक मुसविदा नहीं आया। जहाँ तक मौलाना साहब की आपने जिक्र किया, मौलाना साहब अपोजिशन में बैठा है, अपोजिशन में अपना किरदार अदा कर रहा है, और जहाँ मौलाना साहब समझते हैं कि तनकीद की ज़रूरत है वो हमेशा तनकीद करता आ रहा है, और वो उस कमेटी में खुद शरीक है, खुद तजवीज़ें दे रहे होंगे, तो वो इस कमेटी प्रोसेस के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ मौलाना साहब, पीटीआई के लोग मौजूद हैं, दूसरी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो भी मौजूद है। तो अब हमने देखना है कि ये फ़ैसला क्या करेंगे। अगर ये फ़ैसला करते हैं कि हमने कोई आईनी तरमीम करना ही नहीं है तो ये करेंगे। अगर वो फ़ैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फ़ैसला करते हैं कि नहीं करना नहीं करते हैं। मेरा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम उम्मीद ये है कि हम एटलीस्ट आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर सके। उससे आगे अगर हम काम कर सकते तो वो भी अच्छा होगा। चेयरमैन साहब, चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है
इसमें तोसी के वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं हो सकता, और जैसा ये बड़ा फोरम बना है वहाँ ये फ़ैसले किया जा सकता है, मगर इस वक्त तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो तो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा अपना मंशूर पे मबनी है। गंदापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वज़ीर आला है वो वो रख ले गंदापुर साहब को, वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। और कोई सवाल? बातों की आईनी तरमीम की, लेकिन अगर सीनियरिटी की बजाय पिक एंड चूज का मुजवदा सामने आता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी जब मुखातब करेगी? एट द मोमेंट जो स्टेटस को है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफ़ी देर से आपके सामने है। हम तो काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो ज़बरदस्ती तरमीम पास करवाया गया, और उस तरमीम के नतीजे में जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की तनकीद मगर बार काउंसिल्स की तनकीद, अपोजिशन की तनकीद, हुकूमत वक्त की तनकीद ये रहा है इमरान खान के दौर के लॉ मिनिस्टर साहब और उनके वज़ीरों के बयानात के बाद, कि अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में जो प्रपोज़ल सामने लेकर आया और 19th अमेंडमेंट में हमें फिर उससे पीछे हटना पड़ा, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, मगर जो भी फैसले होंगे उनको जितना हम कंसेंसस के साथ कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा ताकत, चाहे हमारा कानून या हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या जो भी इस कमेटी से निकलता है, जितना कंसेंसस होगा, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ही ज़्यादा उसका आउटपुट को कुव्वत मिलेगा, ताकत मिलेगा। बिलावल साहब केपी में गवर्नर राज देख रहे हैं, केपी में गवर्नर राज देख रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है, और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असम्बली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं। सर आपने बात हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है मुजवज़ा आइन तरमीम के हवाले से, अगर मुसवदा सामने आता है तो क्या पीपल्स पार्टी एट पोल उसको सपोर्ट करेगी या केस टू केस बेसिस पे करेगी? मैं कह रहा हूँ कि बातें चल रही है, इसलिए कमेटी में क्या हो रहा है इस वक्त, बातें ही हो रही हैं। अच्छा, अब जो आप sort of overshot जो कानून साजी का अमल है या तरमीम करने का अमल है, वो बातें के बाद का अमल होता है। अभी कमेटी में आज जो खुर्शीद शाह साहब ने चेयर किया, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही था कि हम चाहते हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को फिर से कायम